Hello everyone, I am Tisha Ashwood, the director of Your English World. Today we are back with 1.2. The chapter name is The Thief's Story. In this we are going to first of all look about the author, then we will be moving a line to line explanation of this chapter. So the chapter name is The Thief's Story and written by Ruskin Bond. He was born in 1934 and he is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore in Missouri, in India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dhera for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. तो दिस ऑल वॉज अबाउट रस्किन बॉन्ड जो कि एक इंडियन ऑथर है ब्रिटिश डिसेंट में और ये अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ यानी कि इन्हें ये ही इज़ अ अडॉप्टेड चाइल्ड इन्हें अडॉप्ट किया है और वो रहते हैं लैंडोर मसूरी में इन इंडिया इटसेल्फ और वो Indian Council like he was from that and he has inspired many of the children for literature in India. तो उनको साहित्य एकेडमी का अवार्ड भी मिला था इन 1992 उनके एक आर ट्री स्टिल ग्रो इन धेरा के लिए एंड उनने ये जो वर्क था वो इंग्लिश में पब्लिश किया था एंड आफ्टर दैट ही हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री एंड पद्म भूषण इन 1999 एंड इन 2014. So this was all about Ruskin Bond, who was the author of this story, and the story name is The Thief's Story. In this we are going to get started with line to line explanation with reading of the passages. So the first one is, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Now as the story itself tells कि he was a thief, right? A thief story it was. तो he is saying कि वो स्टीव थे जब वो अनिल से मिले. अनिल is the name of the character in the story और he was only 15 years old and he was very experienced and fairly handed in this in robbery. He was very successfully fairly handed. तो वो कह रहे हैं कि मेरा हाथ बहुत साफ था चोरी करने में. And after that Anil was watching wrestling match when I approached him. He's saying जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक wrestling match देख रहा था. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. Now he is saying कि वो बहुत kind person लग रहे थे and he was a simple man. He was 25 years tall man. तो उनका जो purpose था that was robbery. तो उसके लिए वो बहुत ईजी लग रहे थे कि वो ईजीली उनको अप्रोच कर सकते हैं. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. उन्हें लगा कि बस अब ईजीली मैं इनके कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा and I'll do my thing what I want to do. And you look a bit of wrestler yourself. उन्हें कहा कि आप खुद एक रेसलर लगते हैं. A little flattery helps in making friends. जो कि बहुत he is very flattery, insincere praise है उनका कि वो friends नहीं बनाते हैं ज़्यादा. और so do you? He replied. तो उन्हें कहा कि which put me off for a moment because at the time I was rather thin. मैंने मतलब उन्हें पूछा कि क्या तुम भी एक रेसलर हो. तो ही वॉज सेइंग अभी मैं क्या बोलूँ मैं तो बहुत ज़्यादा पतला था उस टाइम पे. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. उसने कहा कि एकदम आराम से कि हाँ भाई मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ. सो व्हाट्स योर नेम. उन्होंने कहा आपका नाम क्या है. ही सेड हरी सिंह. आई लाइड. उन्होंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने उनका नया नामकरण हुआ करता था. That kept me ahead of the police and my former employers. ताकि वो कभी भी पुलिस उन तक ना पहुंच पाए और आसपास के लोग उन्हें अलग अलग नाम से जान सके.
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. यानी कि जो लोग वहाँ पे रेसलिंग कर रहे थे, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन उन्होंने की है, वेल ऑयल्ड रेसलर्स. वेल ऑयल्ड रेसलर्स मीन्स वेरी चैम्पियन. वेल ऑयल्ड मीन्स तेल वेल लगा के वैसा वाला नहीं. दे आर वेरी पॉलिश्ड एंड वेरी चैम्पियन रेसलर्स, जो कि एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, मार रहे थे, एंड दे वर जस्ट डूइंग दैट. तो आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. तो अभी उनके पास, उनको रेसलिंग का तो कोई आइडिया था नहीं, तो उनके पास कुछ ज़्यादा रहा नहीं बात करने के लिए. तो अनिल वहाँ से फिर चला गया और वो उनको फॉलो करने लगे. हेलो अगेन ही सेड. अब वो कहीं आके मिल गए और फिर से वो कह रहे हेलो अगेन, मतलब हाय, तुम फिर से यहाँ. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. उन्होंने कहा मुझे आपके लिए काम करना है. बट आई कांट पे यू. उन्होंने कहा लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. उन्होंने कहा ओह, यानी कि ये बंदे के पास पैसे नहीं है, यानी कि मैंने इसे गलत जज किया. ही डजंट हैव मनी. सो आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. उन्होंने कहा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. कैन यू कुक. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. अब वो जो अनिल थे उनने उनसे पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो. अब इन्होंने फिर से झूठ बोल दिया. उन्होंने कहा हाँ मैं बना सकता हूँ. सो ही सेड इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. देन he took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. उनने मुझे अपने घर लेके गए जो कि था द जमुना स्वीट शॉप. ओके, और उनसे कहा कि तुम बालकनी में जाके सो सकते हो. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. तो उन्होंने कहा जो खाना मैंने बनाया वो सच में सीरियसली बहुत गंदा होगा क्योंकि उसने खुद ने नहीं खाया और उसने वो स्ट्रे डॉग को दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. But I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ स्माइल किया and he could not stop laughing and they just did those all cooking and they had dinner. लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि खाना इतना अच्छा बना नहीं था. Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. उन्हें ऐसे थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. He also taught me to write my name. उन्हें मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया. And said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. यानी कि उनने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और सारी चीज़ें सिखाऊंगा जैसे सेंटेंसेस बनाना, नंबर्स ऐड करना and many more. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अभी वो क्या फील कर रहे थे, he was feeling very grateful. उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था. वो ये सोच रहे थे कि एक दिन आएगा जहाँ मैं सच में अपना हर चीज़ एक educated man के जैसे लिख सकूँगा. So it was quite pleasant working for Anil. और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अनिल के साथ काम कर रहा था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. उनका डेली रूटीन हुआ करता था कि वो सुबह चाय बनाते थे और पूरे दिन ₹1 से और रुपए और वो प्रॉफिट अर्न करते जाते थे. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. उन्हें ऐसा लगता था कि मिस्टर अनिल वॉज नोइंग कि तुम गलत तरीके से पैसा बना रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. यानी कि वो एक शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स में उन्हें पैसा मिला करता था, करते थे काम, देते थे और फिर पैसा मिलता था. जैसे कि वो बोरो 1 week, एक दिन उधार लेते थे, नेक्स्ट दिन देते थे और फिर पूरे टाइम तक सोचते रहते थे कि कब तक मेरा चेक आएगा. तो ये ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन्स के लिए काम कर रहे हैं अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए.
One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन वो आए एक छोटे से बंडल ऑफ नोट्स के साथ और कहा कि आज मैंने अपने बुक्स को पब्लिशर को बेचा है. At night, I saw him tuck the money under the mattress. और रात को मैंने उन्हें देखा था कि उन्हें गद्दे के नीचे वो पैसा जो था गद्दे के नीचे दबाया था. मैट्रेस मीन्स गद्दा एंड टक मीन्स अंदर दबाना. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं अनिल के लिए कम से कम 1 महीने से काम कर रहा था बिना उन्हें चीट किए कि शॉपिंग वगैरह में. हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. जो उनका काम था उनने यहाँ आके बिल्कुल भी नहीं किया था कि उसके साथ चीट करना, उनसे कोई चीज़ चोरा लेना और एनीथिंग. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. लेकिन मेरे पास हर चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज ही यूज टू गो एट वर्क एंड आई यूज टू बी देयर एट होम. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. उनने अपने घर की चाबी उनके पास दी हुई थी और वो मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे. उनने कहा कि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना कोई ट्रस्टफुल इंसान को पहली बार देखा है और मैं ये चीज़ कर सकता था क्योंकि मेरे पास चाबी थी तो मैं कभी भी आ जा सकता था और कुछ भी कर सकता था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और वो मुझ पे इतना विश्वास करते थे इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि उनसे कोई चीज़ चुराना. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. कोई लालची इंसान होता है, यानी कि हम कहते हैं ना चोर के घर में चोरी किया तो क्या किया, इट्स ओके बिकॉज ही इज़ ऑल्सो द रॉबर. लेकिन कोई ग्रीडी मैन होता है तो वहाँ से हम बहुत ईजीली चोरी, हम मीन्स दैट पर्सन इज सेइंग कि वो चोरी कर सकते हैं. बट व्हेन अ पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, अगर वो विश्वासु हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. यानी कि जो केयरलेस है, यानी कि किसी को पड़ी नहीं कि मेरा पैसा कहाँ है, क्या है, कौन मेरी चीज़ों पे नज़र रख रहा है, तो ऐसे इंसान को पता ही नहीं चलेगा ना कि उसके साथ चोरी हुई है, तो क्या मज़ा फिर उसकी कोई चीज़ चुराने की. ये ऐसा वो कह रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो उन्होंने कहा कि जाने दो, अब ये टाइम है मेरा असली काम करने का, जो था उनका चोरी करना. तो अब तो बस मुझे ले ही लेना है उसका पैसा. वैसे भी वो क्या करने वाला है, तो वो तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर स्पेंड करता है और वैसे भी वो मुझे थोड़ी कुछ पे कर रहा है. ही इज़ ओनली फीडिंग अप मी. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि अनिल सो रहा था और बालकनी से एक मून लाइट आ रही थी जो कि उसके बेड पर फॉल हो रही थी. यानी कि हम देखते हैं ना कि चांद की रोशनी आती है हमारे बेड पर, वैसा कुछ हो रहा था. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. वो वहाँ पर बैठ गए अपने फ्लोर पर और जैसे सिचुएशन हो रही थी वो वैसे मूवमेंट्स कर रहे थे. तो उनने सोचा यार अगर अभी मैं पैसे लूँगा तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो एक 10:30 की ट्रेन है जो मैं पकड़ सकता हूँ, लखनऊ जा सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. यानी कि ब्लैंकेट से बाहर निकल के वो बस ऐसे चलते चलते वहाँ बेड तक पहुँच गए. तो अनिल जो थे वो पीसफुली सो रहे थे और उनके फेस पे थोड़े भी स्कार्स जैसे लाइक दिस समथिंग, देयर वाज नथिंग. हिज फेस वाज टोटली क्लीन एंड वेरी क्लियर. ओके, अनलाइंड थे और इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. यानी कि वो टेंशन फ्री थे. हमारे फेस पे जब लाइन्स होते हैं यानी कि वी आर टेंस्ड, बट व्हेन वी आर क्लियर सो वी आर वेरी पीसफुल. ओके,
तो उनके ऊपर कोई एंजाइटी साइन नहीं था, कोई टेंशन वाला साइन नहीं था. ही वॉज वेरी फ्री, यू नो. और वो कह रहे कि यार उनसे ज़्यादा फेस पे मार्क्स तो मेरे थे. आई वॉज हैविंग स्कार्स ऑन माई फेस, यानी कि मैं तो और ज़्यादा टेंस्ड था. माई हैंड slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. तो अब उनने गद्दे के नीचे हाथ डाला और नोट्स ढूंढने लगे, और जैसे ही उन्हें वो नोट्स मिले उन्हें जस्ट निकाल लिए और अपने पास रख लिए बिना आवाज किए. Anil signed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. और अचानक अनिल ने करवट ले ली और उन्हीं के पास में फेस कर लिया जो बेड के नीचे से, यानी कि सॉरी गद्दे के नीचे से अपने नोट्स निकाल रहे थे. तो वो डर गए और एकदम जल्दी से रूम से बाहर निकल गए. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by a string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. Okay. तो अबू ने कितने क्या बोल रहे हैं वो कि रोड पे वो जैसे ही गए, जैसे ही वो भागने लगे और उनके वेस्ट पर वो सारे नोट्स थे बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, यानी कि जो पजामा में नाड़ा होता है उससे उन्हें बांध रखा था. फिर वो थोड़ा आगे जाके स्लो डाउन हुए और नोट्स काउंट किए. सो दोज वर 600 रुपीज़ इन 50s, यानी कि 50 के नोट थे और टोटल वर 600 रुपीज़. अब उस टाइम पे ये पैसे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आजकल कुछ भी नहीं है. लेकिन उन्होंने कहा कि अब हफ्ते 2 हफ्ते तक तो मैं एकदम मस्त अरब के जो ऑयल रिच पीपल होते हैं उनके जैसे मैं रह सकता हूँ बिना कुछ काम किए. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब जब वो स्टेशन पे पहुंचे वो कभी भी टिकट ऑफिस पर, यानी कि कभी भी उन्होंने अपने लाइफ में टिकट्स नहीं खरीदे थे, बट dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason, I can't explain, and I lost the chance to get away. अब देखो क्या बोल रहा हूँ. वो जब भी स्टेशन पे जाते थे कभी टिकट नहीं खरीदी, और सामने ही वहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी थी. वो जाके उस ट्रेन को पकड़ सकते थे, यानी कि उसमें चढ़ सकते थे. जस्ट वो जा ही रही थी, बट दैट वॉज नॉट मच स्पीड अप कि वो नहीं पकड़ पाए. बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम ही गॉट हेसिटेटेड, यानी कि हेसिटेटेड हो गए, यानी कि वो जा ही नहीं पा रहे थे. एंड द एक्सप्लेनेशन ही वॉज नॉट हैविंग कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, जस्ट आई कांट, मैं नहीं कर पाया. और उनसे वो ट्रेन मिस हो गई और वो चांस भी चला गया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted platform means पूरा खाली प्लेटफॉर्म था, कोई नहीं था उस जगह, और वो अकेले वहाँ खड़े थे जैसे ही ट्रेन वहाँ चली गई. I had no idea where to spend the night. अब मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं पूरी रात कहाँ गुजारूँ. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And दोस्त तो थे ही नहीं, और दोस्त पे अगर भरोसा भी करो तो वो कोई हेल्प नहीं, वो उससे ज़्यादा मेरे लिए ट्रबल होगा, यानी कि टेंशन हो जाएगा. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मुझे किसी को भी अपने आप पे शक होने नहीं देना है, किसी को क्यूरियस नहीं करना है कि भाई मैं कहीं होटल रुक जाऊँ या स्टेशन रुक जाऊँ. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. अब वो बोल रहे जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ वो सिर्फ वही इंसान है जिसके यहाँ से मैं चोरी करके आया हूँ. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. मैंने स्टेशन से निकलते ही मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. अभी जो मेरा एक छोटा सा करियर रहा है चोरी के इसमें, तो मैंने लोगों को देखा है जब उनकी कोई चीज़ें चोरी हो जाती है तो उनका फेस रीडिंग मैं कर पाता हूँ. द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. यानी कि उनका कहना है कि जो लालची इंसान होता है वो डर जाता है कि मेरी कोई कीमती चीज़ कहाँ चली गई.
जो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरी चीज़ कहाँ चली गई, बट जो पुअर मैन होता है यानी कि जो गरीब इंसान होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद ये मेरी नहीं थी इसलिए वो चली गई। लेकिन जब वो मिस्टर अनिल के बारे में बात कर रहे तो वो कह रहे कि यार अनिल इज नॉट दैट टफ, अगर उनको पता भी चलेगा तो उनको कुछ फील नहीं होगा, बट ही विल ओनली फील सैड, उन्हें बस बुरा लगेगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और पैसों के लिए बुरा नहीं लगेगा, उनका विश्वास टूटा है इसलिए उन्हें बुरा लगेगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench। तो वो एक मैदान में थे, मैदान मीन्स अ ग्राउंड। सो वहाँ पे वो जाकर एक बेंच पे बैठ गए। The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face। अब वो अकेले उस मैदान में बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, नवंबर का महीना था और वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट थे, यानी कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। उनके जो शर्ट और पैजामाज थे, जैसे बारिश यानी कि गीले होते हैं तो हमारे बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, तो वो उसी तरीके से स्टिक हो चुके थे और एकदम तेज़ ठंडी हवा आ रही थी जो कि उनके फेस पर से जा रहे थे विथ रेन। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. There was a clock tower, तो उन clock tower के shelter में जाके वो बैठ गए। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. अब देखो, अब वहाँ जाके वो बैठ गए, लाइक आधी रात हो चुकी थी। मुझे बुरा सिर्फ नोट्स के लिए लगा कि वो बारिश हो रही थी ऑब्वियसली, तो वो भी गीले हो गए। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो कह रहे अनिल के पैसे, अब ये सुबह शायद मुझे इसमें से 1-2 नोट देता और मुझसे कहता कि जाओ तुम जाके सिनेमा में कोई मूवी देख लो, और अब तो मेरे पास सारे के सारे नोट्स हैं, लेकिन मैं अब उसके लिए खाना नहीं बना सकता, मैं बाज़ार नहीं जा सकता चीज़ें खरीदने के लिए, और ना ही मैं पूरे जो उसने वादा किया था कि मैं सेंटेंसेस तुम्हें सिखाऊंगा बनाना, तो वो अब भी नहीं सीख सकता, और बहुत सारी चीज़ें। I'd forgotten about them in the excitement of the theft। अब मैं ये सारी चीज़ तो भूल ही चुका था कि मुझे इतना कुछ मिलने वाला है, और क्यों भूल चुका था? क्योंकि मैं चोरी करना चाहता था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else। अब देखो वो कह रहे हैं कि वाह, उनको सबसे पहले क्या याद आया? होल सेंटेंसेस, या मैं पूरे सेंटेंसेस बनाना सीखने वाला था। मुझे पता है कि हम कभी वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, बहुत सारे पैसा मुझे आ सकता है, एक छोटी सी चीज़ है कि बस मुझे जाके कहीं से स्टील, यानी कि स्टील मीन्स चुराना है, और समटाइम्स मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, लेकिन एक क्लेवर, एक बिग मैन बनना और एक वो रिस्पेक्ट पाना, वो कुछ अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मुझे ऐसा लगता है मुझे अनिल के पास फिर से जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए बस मुझे लिखना और पढ़ना सिखा दो यार। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। अब देखो, अब वो बोल रहा अब बस मैं चला गया रूम पर, लेकिन बहुत नर्वस था क्योंकि चुराना आसान है, लेकिन फिर से वैसे का वैसे ही वहाँ पे फिर से देना, वो भी अनडिटेक्टेड, यानी कि बिना पकड़े, उनसे किसी ने पकड़ा तो नहीं है, और उन्हें रिटर्न करना दैट इज मच डिफिकल्ट। I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. It was very clouded moonlight, यानी कि बारिश हो रही थी इतनी देर से, लेकिन अनिल मस्त आराम से अपना पीसफुली सो रहे थे, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो अब भी सो ही रहा था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes। अब मैं बेड के सिरहाने के पास गया और मेरे हैंड में मैंने नोट्स लिए। I felt his breath on my hand। मुझे उसकी जो सांस थी वो अपने हाथ पर महसूस हो रही थी।
अपना notes, okay. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फिर भी मैं 1 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा और जो कॉर्नर था मैट्रेस का वो मुझे पता चल गया, लाइक आई जस्ट गॉट इट आउट एंड मैंने फिर उसके नीचे वो सारे नोट्स रख दिए. आफ्टर दैट I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब वो देखो, वो बोल रहे हैं कि मैं दूसरे दिन थोड़ा लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल ने खुद ही खुद के लिए चाय बना ली थी और ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी. उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ लाया विद अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. उनके हाथों के बीच में एक 50 रुपी नोट था और वो देख के मैं एकदम डिप्रेस हो गया कि मुझे लगा अब बेटा मैं तो पकड़ा गया. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब उनने कहा कि कल मैंने पैसे कमाए हैं और आज से मैं तुम्हें हर रोज़ सैलरी दूंगा, यानी कि रेगुलरली आपको सैलरी मिलेगा. माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. फिर मैंने वो ले लिया एंड आई गॉट होपफुल कि चलो सब कुछ ठीक है. लेकिन जैसे ही मैंने हाथ में वो नोट लिए मैंने देखा कि ये तो अभी भी गीले हैं. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. उन्हें कहा आज से हम सेंटेंसेस लिखना भी स्टार्ट कर देंगे. He knew, but neither his lips or his eyes showed anything. उन्हें कहा उसे पता तो चल गया था लेकिन ना वो बोल रहा था ना वो दिखा रहा था कि उसे पता चल गया. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. अब जो उनकी लास्ट स्माइल आई उनने जैसी, क्योंकि उन्हें जताया ही नहीं ना कि उन्हें पता चल गया भाई तूने चुराए थे या कुछ, मुझे आई नो व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली. तो उनकी जो अपीलिंग स्माइल हुआ करती थी ही गेव दैट एंड कोई एफर्ट से वो स्माइल नहीं आनी पड़ी, वो अपने आप से ही आ गई. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी द थीफ स्टोरी. इससे आपको क्या सीखने को मिला? द थिंग विच यू मस्ट हैव लर्न फ्रॉम दिस इज, चोरी की करता था वो इंसान और वो एक ऐसे इंसान से मिला जिसको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी. यानी कि डू यू थिंक उनने जो मिस्टर अनिल थे उन्होंने इन्हें इतने जल्दी से सुधार दिया. ही लाइक मेड हिम कि उन्हें कोई लेक्चर नहीं दिया कि तुम्हें चुराना नहीं चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह. ही डिडंट से एनीथिंग, बट सिर्फ वो जो बिहेवियर था ही मेड हिम चेंज्ड, right? And there is no continuity of the story in this book, but I must say कि वो जो future होगा that would be really very different. And this was all about this chapter. It was really very beautiful, even I liked it, and hopefully आपको भी ये पसंद आया होगा. Again at the last I just want to say कि syllabus के लिए नहीं पढ़ना, syllabus तो हो जाता है cover, बिकॉज यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद दिस. अब जो एक्सप्लेन मैंने किया ये स्टोरी आपके माइंड में बैठ गई है. अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है वेल एंड गुड, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. नहीं आता है आप डाइजेस्ट नोट्स वगैरह सबकी हेल्प लेके सेंटेंसेस लर्न करके आंसर्स लर्न करके यू कैन राइट डाउन. बट जो चीज़ लैंग्वेज बुक्स आपको सिखाती हैं ना, दोज आर सो स्पेशल. तो इन्हें अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. किसी को अगर चेंज करना है, किसी बुरी आदत से अच्छी आदत में लाना है, तो लेक्चर देने की बजाय ना उसको बस उसको ऐसा बिहेव करो कि वो चीट ही ना कर पाए आपको. दिस वॉज रियली वंडरफुल. इवन आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस. थैंक यू सो मच. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. बाय बाय. टेक केयर.